Because if Priyanka Vadra offers namaz, and there is nothing wrong with that, she should come clean on it. What is this petty politics of trying to appease Hindus, appease Muslims, use both the religions, use both the communities to your advantage? This is all that Congress has done for so many years. You know, and they've just used Muslims for their votes. Muslims are not ATV, anytime vote for them. And now they're realizing that they must now suddenly turn Hindu. So, which is why all the Janayu talk, Gotra talk, Ram Mandir talk, these are the people who went against, they actually had an affidavit against the Ram temple. And so then they talk about this, they must account for their overall policies and their allegiance to the other community. You can't play both the communities against them for your benefit all the time. देखिए, बहुत अफसोस की बात है, जिस तरह से स्मृति ईरानी जी साफ साफ बता रही हैं, प्रियंका गांधी वड्रा जी जो हैं बाकायदा नमाज़ पढ़ती हैं और उसमें कोई एतराज़ किसी को नहीं है। लेकिन जब आपको मुसलमानों का वोट चाहिए अमेठी में, तो आप वहाँ पे इबादत करती हैं और अपना नमाज़ पढ़ती हैं, फिर सडनली आप जो है उपासक बन जाती हैं और आपको अब हिंदू वोट चाहिए तो आपको वहाँ पे जाकर मंदिर निर्माण की बात करनी है। कौन यकीन करेगा, कौन यकीन करेगा उन पर, आप सोचिए। तो मतलब आप हिंदू धर्म का और हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्थाओं के साथ फिर से खिलवाड़ कर रही हैं और मुसलमानों को तो आपने हमेशा इस्तेमाल किया ही है। यही है कांग्रेस की पूरी राजनीति, एक रणनीति, धर्म और मज़हब के नाम पर लोगों को डिवाइड करो, उनको इस्तेमाल करो और अपना घर भरो। और ये बात करते हैं करप्शन की, हास्यास्पद है। जिस पार्टी में आधे से ज़्यादा नेता, चाहे DK शिव कुमार हों, चाहे अपने राहुल जी हों और उनकी माता जी हों, सब बेल पर हैं वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों पर वो बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की। You know, I understand that Congress party wants to abuse and vilify our Prime Minister day after day. But I don't understand why Congress party would want to work against the interests of poor children, poor students of Karnataka. Because according to the new educational policy, Kannada would be given equal preference as English. There would not be any bias against the local language. So does a child who has little knowledge of English, should he or she be deprived of pursuing his or her dreams of becoming an engineer or a doctor or receiving higher technical education only because he or she does not know English? So why would Congress party want to work against the interest of those children? I think the children of Karnataka, the most marginalized ones, those who are on the other side of the urban-rural divide, have equal right to pursue their dreams and receive the best and the finest education. So when Prime Minister says that Congress is working against the interest of those children, I would totally agree with that, because it's one thing to work against BJP, but why would you want to make the children of Karnataka suffer? कि कांग्रेस पार्टी को सुबह शाम मोदी जी को गाली बकनी है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो बिल्कुल मार्जिनलाइज गरीब हमारे बच्चे हैं कर्नाटक के, उनके खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र रच रही है कांग्रेस पार्टी कि आप जो नई पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, NEP को आप उसको हटाना चाहते हैं। इस पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ी ना जानने की वजह से कोई बच्चे को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। यानी कि अगर लोकल लैंग्वेज, यानी कि अगर वो कन्नड़ में आगे बढ़कर हायर टेक्निकल एजुकेशन चाहता है, वो इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी से एजुकेशन पॉलिसी को वापस लेगी तो क्यों वो उन बच्चों के खिलाफ काम करेगी? भाई आपकी नाराज़गी है या दुश्मनी है PM साहब से, भाजपा से, तो आप कीजिए। आप बच्चों को क्यों अपना टारगेट बना रहे हैं? बच्चों के खिलाफ आप ऐसा क्यों षड्यंत्र, ऐसी साजिश करेंगे? Confusion and more confusion. I don't know what is happening within the Congress party. We all know that the manifesto spelled out the proposed ban on Bajrang Dal. Now, to make the matters worse, Kamal Nath ji, the former CM and a trusted lieutenant of the party, either is confused or in disagreement or does not know any better. But for him to say that
you know, it was not really proposed in the manifesto. I don't know. It just speaks of confusion and more confusion. भाई कुछ समझ में नहीं आता कितना confusion है कांग्रेस पार्टी में. अब कमलनाथ जी क्या इससे सहमत हैं, असहमत हैं या नहीं जानते हैं. पूरी दुनिया को पता है कि मैनिफेस्टो में बाकायदा बजरंग दल को बैन करने की बात कही है. अब कमलनाथ जी को पता नहीं एकदम से ख्याल आया, क्यों सोते हुए जागे और कहा कि ऐसा तो कोई प्रपोज़ल ही नहीं है. तो सो के जाग रहे हैं, जाग के सो रहे हैं, इतने कंफ्यूज क्यों हैं भाई. कांग्रेस पार्टी इज़ द नेशनल कमीशन पार्टी. Everybody knows what Congress party stands for. So a party which has Rahul Gandhi ji, Sonia Gandhi ji, DK Shiv Kumar ji all on bail, they are talking and accusing Bharatiya Janata Party of corruption. I think is quite hilarious. भैया सबकी सब हैं उस बेल गाड़ी में. वो जो बेल पे सब लोग हैं, चाहे वो सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे आपके DK शिव कुमार जी हों, सब जानते हैं कि क्या है भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा. और शुरू होती है वो कांग्रेस से, ख़त्म होती है कांग्रेस में. तो हम जानना ये चाहेंगे कि आप अगर बात करेंगे भ्रष्टाचार की और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे तो आपकी खुद की विश्वसनीयता तो ज़ीरो के नाम पर है और वो उससे भी कम हो जाएगी. तो कौन यकीन करेगा आपकी बात को अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, ये जानते हुए कि आप सबकी सब आधे से ज़्यादा लोग उस बैलगाड़ी में चल रहे हैं. हम सब ने देखी वो तस्वीरें शीश महल की, क्या आलिशान स्टाइल में मुग़ल आज़म साहब, हमारे नवाब नटवर लाल जी बाकायदा शान और शौकत से कैसे जी रहे हैं. और ये भी बात सुनने में आ रही है और अभी आपको उसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी. लेकिन जो मेरे पूर्व साथी जो आंदोलन के वक्त से साथ में हैं, उनसे पता चली है ये बात कि सिसोदिया कैंप और सत्येंद्र जैन कैंप बहुत ही नाराज़ है. उनके ना सिर्फ परिवार वाले बल्कि उनके सारे हिमायती. और सुनने में यही आ रहा है कि जो अंदर की जो तस्वीरें हैं जो बाहर आई हैं वो शायद उस खेमे ने ही, उस कैंप ने ही जारी की हैं. ये जो सिलेक्टिव लीक हुआ है तो ये एक खिसियाहट है उन दोनों जेल याफ्ता साथियों की, केजरीवाल के, जो खुद तो जेल में बैठे हैं और देख रहे हैं अंदर से कि क्या हाल है यहाँ पे, केजरीवाल जी कैसे शान और शौकत से रह रहे हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि सिसोदिया ही केजरीवाल को पूरी तरह से नीचे घसीटेंगे, उनको बिल्कुल डाउन ले जाएंगे.